ये डिस्कस Good morning, students. गुड मॉर्निंग। Yesterday we have studied polypetalous corolla. Here, when all petals are free from each other, the condition is known as polypetalous. While in gamopetalous, when all petals are unite with each other, is known as gamopetalous corolla. Gamo means united and petals means corolla. And we have studied estivation also yesterday. In estivation, we studied total 5 types, out of which the 4 types are among all families, while the 5th one is restricted to only one family, that is Papilionaceae family. Estivation means arrangement of calyx and corolla in bud condition is known as estivation. In estivation, when all floral parts, that is calyx or corolla, and the border of petals or sepals are laid side by side without any overlapping or overlapped condition, the situation is known as volvate estivation. While in second type, twisted estivation, in this type, the in all total, if 5 petals or sepals are present, one border of sepal is overlapping and one border is overlapped. Means one border of each petal is inner one, while one border of each petal is outer one, due to which a twisted appearance is got to the flower, and due to this twisted appearance, the estivation is also known as twisted estivation. While in third type, the one petal shows both borders are overlapping. One petal shows both borders are overlapped, and remaining petal shows one border overlapping and one border overlapped. Means in this situation, one petal shows both borders at inner side, one petal shows both borders at outer side, while the remaining petal shows one border at inner side and one border at outer side. This condition is known as imbricate estivation. While in third type, out of the petals, 2 petals are totally at outer side. You can observe in this figure, this one is outer one and this one is outer one, totally outer. These 2 petals are totally inner side. Their both borders are at inner side, while remaining 5th petal shows one border at outer side and one border at inner side. Such type of situation where 2 petals are totally at inner side, 2 petals are totally at outer side, and one petal showing one border inner side and one border at outer side. Such type of arrangement of sepals or petals is known as quincuncial estivation. While in 5th type,
In all total, 5 petals are present. This is a characteristic feature of family Papilionaceae. This is present in only Papilionaceae family, and in this total, in all total, 5 petals are present, out of which one petal is larger one, and this is known as standard, while remaining 2 petals are middle sized, and these are known as wings, while the remaining 2 petals are most smaller one, and they unite with each other forming boat shaped structure, and this is known as kill. Here the corolla is divided into 3 types: standard, wings, and kill. Such type of arrangement of petals are known as waxillary estivation. So all these 5 types were studied yesterday. Then we studied Adelphi. Adelphi means union. Union, any type of union. Here we are studying Androecium. So here union in Androecium is known as Adelphi, and when all the stamens are free and filaments get united to form single bunch or single staminal tube, this is known as monoadelphous condition. Here only one bunch is formed by the filaments, so it is known as monoadelphous. Mono means one. In second situation, 10 stamens are present, out of which 9 stamens unite together to form one bunch, and one stamen represent one second bunch. So here 9 plus 1 condition is formed. So 2 bunches are formed. Hence, this is known as diadelphous condition. In last one, polyadelphous condition, here the stamens are free and filaments unite to form bunch. In this situation, more than 2 bunches are formed, so this is known as polyadelphous condition. The example of monoadelphous condition is hibiscus. The example of diadelphous condition is pea, while the example of polyadelphous condition is citrus. Second type is syngeny. In all these monoadelphous, diadelphous, and polyadelphous condition, we studied that the all filaments get united while the stamens are free. Hello, हाँ बोलो. गुरुदेव दत्त काका ऑनलाइन मीटिंग चल रही, मैं करता बाद में. All filaments get united and stamens are free, but in syngeny or syngenaceous condition, the condition is totally reverse. Here, all filaments are free while stamens are united, and its example is very common example in our area is Leuphia. In local language, it is known as Gilke. Filaments are free and stamens are united. While in last condition, synandry condition, now we studied in first type in Adelphi, all filaments are united and stamens are free. In second type, in syngenaceous condition, we studied that all stamens are united and filaments are free, while in this last type, all filaments and stamens are united in a bunch. This is known as synandry condition, and its example is cucurbita. These are the combined or collective figures of all Adelphi.
We also studied yesterday epipetalous condition. When filaments are attached to the corolla, the condition is known as epipetalous condition, and its very common example is dhatura. Didynamous condition. In didynamous condition, in all total, 4 stamens are present, 4 androeciums are present, out of which the filament of 2 androecium or stamens are quite long, and the filament of other 2 stamens are comparatively shorter. So here 2 states or 2 types of conditions are observed. 2 filaments are long and 2 filaments are short. So 2 sets of stamens are observed in this condition. So this is known as didynamous condition. Di means 2 and dynamous means set. 2 sets of stamens are observed in this condition. So this is known as didynamous condition, and its common example is tulsi. While in another type, tridynamous condition is observed. Same case here, filament of few stamens are very long, filaments of few stamens are middle sized, and filaments of few stamens are smaller. In all, 3 sets of stamens or 3 sizes of stamens are observed in this case. So this is known as tridynamous condition. The stamens which consist single cell structure is known as monothecous. Mono means single and thecus means compartment. The anther comprises only one cell is known as monothecous condition, while the anther shows two-celled structure is known as dithecous condition. Di means 2 and thecus means again chambers. 2 chambers are present. It is known as dithecous stamens. Now, gynoecium. Gynoecium is the last and inner whorl of flower. This is the 4th whorl of flower, and it consists stigma, style, and ovary. The stigma is upper one, style is middle one, and below is ovary. On the basis of union of gynoecium, the gynoecium is divided into number of parts. If single ovary is present, it is known as monocarpous gynoecium, while if more than one gynoecium is present and they are free from each other, in this figure you can observe in all total 3 gynoeciums are or 3 ovaries are present at here. Out of these 3 ovaries, all are free from each other. Even its section also shows there is no union or no combination of ovaries. So all 3 ovaries are separate, clear-cut separate from each other. And when ovaries are more than number 1, and if they are free from each other, the condition is known as apocarpous gynoecium or apocarpous ovary. In other case, the gynoecium are more than number 1. Here 1, 2, and behind these 2, 1 more is present, means in all total 3 gynoeciums are present. मानसी पवार, तुम्ही स्क्रीन वरती क्रॅश करू नका. In all total 3 gynoecium or 3 ovaries are present, and all these 3 ovaries are unite to each other, and when all ovaries are united with each other, the condition is known as
syncarpous ovary. In this sketch you may observe the same thing is summarized at here. This is apocarpous ovary and this is syncarpous ovary. In apocarpous ovary, in section, all carpels are clear cut, very separate, while in syncarpous, all carpels are united with each other, forming such tricarpellary structure. And when such type of union is observed or fusion is observed in between ovaries, the condition is known as syncarpous ovary. On the basis of number of carpels present in the ovary, the gynoecium are divided into 5 types. This is first type, monocarpellary ovary. Mono means single and carpel means gynoecium. Inside the gynoecium, only one carpel is present. You can observe at here. This at the center, only one ovule is present, and around to this ovule, only one chamber is present. Only one carpel is present. So, if only one carpel or one chamber is present, it is known as monocarpellary ovary. In the second type, 2 carpels or 2 chambers are present. This is very clear cut. You can observe 1 and 2. 2 carpels are present. So this is known as bicarpellary ovary. In third one, 3 chambers are present. 3 ovaries are present and they are united with each other. This is known as tricarpellary. 3 chambers are present, so it is known as tricarpellary. It is very simple. This is pentacarpellary. 5 chambers are present. You can count at here. 5 chambers are present, so this is known as pentacarpellary. This is more than 5 carpels are present at here, so this is known as polycarpellary. More than 5 chambers or 5 carpels are present at here, so this is known as polycarpellary. The example of monocarpellary ovary is P. The example of bicarpellary ovary is Dhatura. Here the example is cucumber. This example is hibiscus, and such type of ovary is present in citrus. Citrus means नींबू. नींबू में आप लोग देखोगे तो काउंट अगर किया होगा कभी तो 5 से ज्यादा चेम्बर्स नींबू में प्रेजेंट होते हैं. नींबू का फ्रूट अगर कभी कट करके बारीकी से ऑब्जर्व किया हो आपने, नहीं किया हो तो आप घर जाकर जरूर करना. उसमें 5 से ज्यादा चेम्बर प्रेजेंट होते हैं. और ये जो फोटोग्राफ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये कमल के फूल का फोटोग्राफ है. कमल में जो गाइनोशियम मिलता है वो गाइनोशियम इस तरीके से बहुत ज्यादा चेम्बर वाला होता है. यहाँ पर 2 एग्जांपल्स रखे हुए हैं, एक है लोटस और दूसरा है सिट्रस. अब गाइनोशियम जितने चेम्बर्स है उतने चेम्बर पर से भी गाइनोशियम एक्सप्लेन किया जाता है. जैसे कि इफ गाइनोशियम कंसिस्ट सिंगल चेम्बर. अब यहाँ पर सभी फिगर्स दी हुई है, आप लोग देख सकते हो. इतने क्लियर कट फिगर है. यहाँ पर सिर्फ एक ही चेम्बर प्रेजेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 चेम्बर है, यहाँ 4 चेम्बर है और यहाँ पर 5 चेम्बर है. अगर जहाँ पर गाइनोशियम सिर्फ एक ही चेम्बर से बना हुआ होता है उसे यूनिलॉक्यूलर कहा जाता है. गाइनोशियम अगर 2 चेम्बर से बना हुआ है तो उसे बायलॉक्यूलर कहेंगे. 3 चेम्बर से अगर बना है तो ट्राइलॉक्यूलर कहेंगे. 4 चेम्बर से बना है तो टेट्रालॉक्यूलर कहा जाएगा और 5 से अगर बना है तो पेंटालॉक्यूलर कहा जाएगा. इस तरीके से चेम्बर पर से गाइनोशियम को डिस्क्राइब किया जाता है. फिर आता है प्लासेंटेशन. प्लासेंटेशन का डेफिनेशन ये है
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लासेंटा इज नोन एज प्लासेंटेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लासेंटा इज नोन एज प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये ओवरी की वॉल है और ये ओवरी के वॉल पर यहाँ पर प्लासेंटा है, और ये जो प्लासेंटा है ये ओवरी के मार्जिन पर यानी एक साइड पर अरेंज हो रहा है, इसलिए इसे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहा जाता है। ऐसे टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे पैराइटल प्लासेंटेशन कहा जाता है। एक्साइल प्लासेंटेशन में बीच में सेंटर में एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस के ऊपर ये ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ये एक्सिस यानी प्लासेंटा होता है और ये प्लासेंटा के ऊपर, सेंट्रल प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ये एक्साइल में होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसे एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है। यहाँ पर है एक फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्साइल प्लासेंटेशन में दो ओव्यूल के बीच में एक वॉल डेवलप हुई है, और ये वॉल डेवलप होने की वजह से यहाँ पर चेम्बर्स तैयार हो रहे हैं। टोटल 3 चेम्बर्स हैं यहाँ पर, कभी 4 या 5 भी हो सकते हैं, मगर यहाँ फ्री सेंट्रल में ऐसा होता है, ये बीच में की जो साइड वॉल्स होती है ये साइड वॉल्स डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के वजह से एक प्लासेंटा जो है वो सेंटर में फ्री रहता है। यहाँ पर प्लासेंटा और ओवरी वॉल के बीच में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे फ्री सेंट्रल प्लासेंटा कहा जाता है। दूसरा टाइप है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉलीकार्पेलरी ओवरी में, जिसमें बहुत सारे चेम्बर्स प्रेजेंट थे, और जिसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था लोटस और सिट्रस। लोटस और सिट्रस के टाइप में ही ये सुपरफिशियल प्लासेंटेशन यहाँ पर दिखाई देता है। 5 से ज्यादा चेम्बर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये चेम्बर की खासियत एक होती है। अब यहाँ पर हर प्लासेंटेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मार्जिनल में एक स्पेसिफिक जगह पर ओव्यूल आया है, पैराइटल में एक स्पेसिफिक जगह पर ओव्यूल अटैच है, एक्साइल में भी अपने जगह पर ही ओव्यूल अटैच है, फ्री सेंट्रल में सेंटर के पोजीशन में ओव्यूल अटैच है। मगर सुपरफिशियल एक ऐसा प्लासेंटेशन होता है कि जिसमें जहां पर जगह मिल रही है वहां पर ओव्यूल डेवलप होता है, यानी हर जगह पर आप लोगों को ओव्यूल यहाँ पर दिखाई देता है। इसे सुपरफिशियल प्लासेंटेशन कहा जाता है। आप लोग अगर नींबू को कट करके देखें तो उसके हर जगह पर आप लोगों को इस तरीके से ओव्यूल्स डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। इसे सुपरफिशियल प्लासेंटेशन कहा जाता है। और सबसे आखिरी में आता है बेसल प्लासेंटेशन। ये बेसल प्लासेंटेशन जो है हमारे एरिया में जो कॉमन एग्जांपल मिलता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भुट्टा आप लोगों ने देखा होगा, या मराठी में जिसे मकई कहते हैं। ये भुट्टा या मकई में, जिसे बॉटनिकल लैंग्वेज में मेज कहा जाता है, MAIZE, मेज में आप लोगों को ऐसा या सनफ्लावर में आप लोगों को ऐसा बेसल प्लासेंटेशन दिखाई देता है। ये बेसल प्लासेंटेशन ऐसा होता है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मार्जिन से आ रहा है, यहाँ पर ओव्यूल जो है वो बेस से अराइज होता है, नीचे से अराइज होता है, बेस के पोजीशन से अराइज होता है, इसलिए इसे बेसल प्लासेंटेशन कहा जाता है। ये प्लासेंटेशन के अलग अलग टाइप्स अलग अलग प्लांट्स में मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ तक एंड्रोशियम अपना फ्लावर के टोटल जो पार्ट्स थे या फ्लावर में जो जो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो सभी के सभी टाइप्स या उनके पार्ट्स, उनके नाम, उनके डेफिनेशंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फ्लावर में आप लोगों को अगर कोई डिफिकल्टी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। अरे बोलिए बोलिए, अपने को खुद को अनम्यूट कीजिए। समझ में आया है तो भी बताइए, जयसवाल सर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो वो भी बताइए।
हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। अरे तो कुछ बोलिए बच्चे लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी बुरा खराब पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगने लग गया मुझे। ऐसा नहीं है सर। आपका लेक्चर सुन के सब सो गए। नहीं सर। नो सर। अरे बद्दा ऊँगता छे के? हाँ, हाँ। ना सर। अरे ऊँगता नहीं दिख रहा, आओ नहीं चले। સર આપણું લેક્ચર એટલું સારું હતું ને તો એટલે ઊંઘી ગયા બધા. ओके, अगर कोई बोल नहीं रहा तो मैं ऐसा समझता मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद की कॉलर टाइट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलेगा? चलेगा। चलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर के बाद में हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। जनरली लीफ जो होता है ये एरियल पार्ट में आता है और सनलाइट के डायरेक्शन में बढ़ने वाला ऑर्गन होता है, और सनलाइट के डायरेक्शन में बढ़ने वाला होने के वजह से और लीफ में फोटोसिंथेसिस की यानी फूड प्रिपरेशन की मेन प्रोसेस की जाती है, इसलिए लीफ हमेशा ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं और लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये एक स्टेम है और ये स्टेम के ऊपर यहाँ लीफ अराइज होता है। लीफ जहाँ से अराइज होता है और जिस चीज के ऊपर लीफ अटैच होता है, जो छोटी सी एक डंडी होती है, ये डंडी को या ये स्ट्रक्चर को पीटियोल कहा जाता है और ये पीटियोल मोस्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगर नहीं होता है तो क्या बोलते हैं मैं ये आगे बताऊंगा आप लोगों को। हम एक जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि लीफ एक पीटियोल पर यहाँ पर अराइज होता है। ये पीटियोल पर अराइज होने वाला जो लीफ होता है उसके बाद में एक बड़ा सा ब्लेड फॉर्म होता है और ये पीटियोल जो लीफ के बीच में आखिरी तक के लीफ के एपेक्स तक के कंटिन्यू होता है, इसे मिडरिप कहा जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये मिडरिप लिखा हुआ है और ये मिडरिप के इर्द गिर्द यहाँ पर आप लोग कई सारे ऐसे वेन्स देख रहे हैं। ये जो वेन्स होती है ये फूड मटेरियल ट्रांसलोकेशन का काम करती है लीफ में। ये लीफ जहां पर स्टेम को अटैच होता है उसे एक्साइल कहा जाता है और ये जो नीचे का लीफ का स्ट्रक्चर होता है या लीफ के नीचे का जो पोर्शन होता है इसे लीफ बेस कहा जाता है। अब इसे लीफ बेस कहते हैं तो इसे लीफ एपेक्स कहा जाता है ऊपर के पोर्शन को, और ये जो साइड में होती है इसे लीफ की मार्जिन कहा जाता है। अब हर एक प्लांट में आप लोग स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे या आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो हर प्लांट में ये लीफ के हर स्ट्रक्चर में वेरिएशन दिखाई देता है। जैसे कि कई प्लांट में पीटियोल होगा तो कई प्लांट में पीटियोल नहीं होता है। कई प्लांट में ये जो मार्जिन होती है लीफ की, ये मार्जिन में अलग अलग स्ट्रक्चर यानी अलग अलग शेप हमें दिखाई देते हैं। ये लीफ का जो टिप होता है या एपेक्स जो होता है, ये एपेक्स में भी अलग अलग शेप हमें दिखाई देते हैं। लीफ के बेस में अलग अलग शेप दिखाई देते हैं और ये बीच में की वेन्स की जो अरेंजमेंट है, ये वेन्स के अरेंजमेंट में भी अलग अलग टाइप हमें दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं और सब इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सभी वेरिएशंस जो होते हैं ये प्लांट के ब्यूटी को बढ़ाते हैं। कई बार हम लोग गार्डन में जब जाते हैं तो फूल के बजाय पत्तों के अलग अलग आकार पर से वहां पर हमें अलग अलग प्लांट्स का डेकोरेशन या अरेंजमेंट किया हुआ दिखाई देता है। कुछ अलग से दिखने वाले पत्तों का एक विशिष्ट ऐसा बेड बनाया जाता है वहां पर, या एक ऐसा लाइन बनाई जाती है जिसके वजह से हमारी नजर दूर से भी वो प्लांट के तरफ या वो स्ट्रक्चर के तरफ खींची चली जाती है। कई बार लीफ में ग्रीन कलर के अलावा भी कई सारे इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं कि वो देखकर ही हमारी नजर उसके तरफ खींची चली जाती है। अब ग्रीन कलर भी आप देखोगे तो ग्रीन कलर में भी नेचर में इतनी वेरिएशंस आप लोगों को दिखाई देती है।
कभी आप लोग अगर सफर करते हो एक गांव से दूसरे गांव या कहीं हिल स्टेशन की ओर जाते हो, तो जस्ट अपने गाड़ी में से अगर हम लोग इर्द गिर्द रास्ते के देखें तो खेत खलियान में भी हम लोग इतनी वेरिएशन देखते हैं ग्रीन कलर में। अगर वो भात की या चावल की खेती है तो इतना डार्क ग्रीन दिखाई देता है कि हमारे नजर को तुरंत एक ठंडक पहुंचती है। उससे दूसरी कोई खेती है, गेहूं की खेती है, तो उसका ग्रीन कलर एक अलग ग्रीन कलर होता है जिसे लश ग्रीन कलर कहा जाता है। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सोयाबीन है या तो फिर कुकुम्बर है, इनकी जो क्लाइंबर्स होती है इनके ग्रीन कलर अगर देखें ना हम लोग तो वो पेल ग्रीन कलर होता है, थोड़ा सा झाका ग्रीन कलर इनमें दिखाई देता है। ऐसा अगर नेचर की ओर आप लोग थोड़ा गौर से देखोगे तो ये ग्रीन कलर की इतनी वेरिएशंस हमें नेचर में दिखाई देती है। मगर एक चीज होती है, ग्रीन कलर कोई भी हो वो आंखों को ठंडक देता है। ये आंखों को जो ठंडक ग्रीन कलर से मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक लेते समय लॉन पर चलना चाहिए। लॉन पर अगर हम लोग चलते हैं तो वो लॉन की ठंडक पैरों से लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और ये एक ग्रीनिश कूलनेस जो होता है वो हमारे बॉडी में आता है। ये ग्रीन कलर के वजह से ही ये प्लांट की ब्यूटी में एनहांसमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है। ऐसे ये लीफ के अलग अलग शेप, साइज और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये जो लीफ होता है, ये लीफ दो टाइप का मिलता है। एक होता है डाइकॉट में मिलने वाले लीफ और दूसरा होता है मोनोकॉट में मिलने वाले लीफ। अब आप लोग ये स्केच के तरफ देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि डाइकॉट में कैसे टाइप का लीफ होगा और मोनोकॉट में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डाइकॉट में जो अंदर के साइड में वेन्स है ये बिल्कुल जालीदार वेन्स है, ये जाली के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती है। मगर ये मोनोकॉट में रेशे के जैसे, सीधे सीधे रेशे के जैसे यहाँ पर अंदर की वेन्स का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जालीदार स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसलिए इसे नेटवर्क कहा जाता है। और ये सीधे सीधे होते हैं इसलिए इसे पैरेलल कहा जाता है। तो डाइकॉट में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो नेटवर्किंग का होता है और यहाँ पर पैरेलल वेनेशन होता है। ये दोनों में का फर्क है और ये मेन फर्क है लीफ में का, नेटवर्किंग और पैरेलल वेनेशन। अब लीफ में दो टाइप के लीव्स होते हैं, एक सिंपल लीफ होता है और एक कंपाउंड लीफ होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये अगर समझ में आ गया तो अगला बहुत इजी हो जाता है। फिर कोई भी लीफ अगर बीच में, अब ये लीफ को आप गौर से देखिए पहले फिगर को, यहाँ पर सेंटर में मिडरिप है और ये मिडरिप आखिरी तक जाती है और ये मिडरिप के इर्द गिर्द दोनों ओर, इस साइड में और इस साइड में ये लीफ ब्लेड प्रेजेंट होता है। अब जिस वक्त बीच में की मिडरिप में कोई भी डिवाइडेशन अगर ना हो और इर्द गिर्द के लैमिना में भी अगर कोई डिवाइडेशन अगर ना हो, यानी विदाउट डिवाइडेशन अगर लीफ हो, यानी कहीं पर भी नेचर ने ये लीफ को डिस्टर्ब नहीं किया है वैसा ही इंटैक्ट लीफ यहाँ पर दिखाई देता है। अगर लीफ में ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है कि जिसमें सेंटर की मिडरिप में कोई भी छेड़छाड़ या डिवीजन नहीं हुआ हो, साइड के लैमिना में भी कोई डिवीजन ना हुआ हो, तो ऐसे लीफ को कहा जाता है सिंपल लीफ। अब सिंपल लीफ में से ही कंपाउंड लीफ फॉर्म होता है। अब ये सिंपल लीफ जो है इसे मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं मगर थोड़े अलग तरीके से। अब हमारे पास में यहाँ पर सेंटर में एक मिडरिप है और ये मिडरिप के साइड का जो लैमिना है, ये लैमिना अब डिवाइड होने वाला है। अब ये डिवीजन दो टाइप से होता है, या तो साइड का लैमिना डिवाइड होगा और लैमिना के साथ साथ सेंटर की मिडरिप भी डिवाइड होंगी।
डिवीजन दो टाइप से हो सकते हैं। अगर सेंटर का मिडरिप डिवाइड होता है और बाहर का लैमिना डिवाइड होता है, या सेंटर का मिडरिप और लैमिना दोनों साथ में डिवाइड हो सकते हैं, जिस वक्त मिडरिप या लैमिना में डिवीजन होता है और डिवीजन होकर छोटे छोटे लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, वो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कंपाउंड लीफ। सेकंड फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटर में मिडरिप है और ये मिडरिप के इर्द गिर्द जो पूरा लीफ था, ये लीफ के लैमिना में डिवीजन हुआ और छोटे छोटे लीफलेट्स यहाँ पर फॉर्म हुए। हम यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है लीफलेट्स। एक्चुअल ये पहले सिंपल लीफ था, मगर सिंपल लीफ में डिवीजन हुआ लैमिना में। अब यहाँ पर देखने लायक चीज है कि सेंटर के मिडरिप में बिल्कुल भी डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ साइड के लैमिना में डिवीजन हुआ है, और साइड के लैमिना में डिवीजन होने के बाद में ये छोटे छोटे लीफलेट्स ऐसे फॉर्म हुए हैं। ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है कंपाउंड लीफ। यहां तक समझ में आया आप लोगों के? कंपाउंड लीफ में फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि दो टाइप्स यहाँ पर बनते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। ये सिंपल लीफ में से ये कंपाउंड लीफ तैयार हुआ। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, या तो साइड के लैमिना डिवाइड होते हैं, या लैमिना के साथ साथ सेंटर का मिडरिप भी डिवाइड होता है। ये दो टाइप से डिवीजन पॉसिबल होते हैं। जिस वक्त मिडरिप सेंटर की जैसी क्या वैसे ही रहेंगी, यानी मिडरिप इंटैक्ट रहेंगी और साइड के लैमिना सिर्फ डिवाइड होंगे, तो उसे कहा जाता है पिनिएटली कंपाउंड लीव्स। ये वेरिएशन हमेशा ख्याल में रखना। सेंटर की मिडरिप जैसी क्या वैसी रहेंगी और साइड के लैमिना सिर्फ डिवाइड होंगे, इसे कहा जाता है पिनिएटली कंपाउंड लीफ। और उसका दूसरा टाइप, जहां पर साइड के लैमिना तो डिवाइड होंगे ही मगर सेंटर की मिडरिप भी डिवाइड होंगी, उसे कहा जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। दो टाइप हम लोगों ने देखे, पिनिएटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ बच्चे अक्सर एग्जाम में कहाँ गड़बड़ी करते हैं। आता सब है, समझता सब है, मगर शब्दों के बीच में कंफ्यूजन होने के वजह से गलत आंसर लिख कर आते हैं बच्चे। और फिर क्या होता है पता है क्या? एग्जाम होने के बाद में सब बच्चे डिस्कशन करते हैं, अरे 60 मार्क का पेपर था, कितने मार्क का सॉल्व किया? मैं तो पूरा लिख के आया। दूसरा बोलता है मैं भी पूरा लिख के आया। और जब रिजल्ट आता है तो एक को 60 में से 40 मिले हुए होते हैं और एक को 58 मिले हुए होते हैं। फिर बोलते हैं यार एग्जामिनर ने चेकिंग करते वक्त है ना कुछ गड़बड़ी कर दिया था, शायद मेरा हैंडराइटिंग पसंद नहीं आया इसलिए मुझे कम मार्क दिए। बच्चे लोग ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड्स है ना बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो ये वर्ड्स में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और जो लिखना है उसके अलावा दूसरा लिख कर आते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल पक्की अपने दिमाग में बांध लेनी है कि जिस वक्त सेंटर की मिडरिप बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होने वाली है, सिर्फ साइड के लैमिना डिवाइड होने वाले हैं, उसे कहा जाता है पिनिएटली कंपाउंड लीफ। और दूसरे टाइप में सेंटर के मिडरिप के साथ साथ लैमिना भी डिवाइड होने वाला है, उसे कहा जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। अब जितने लीफलेट्स डिवाइड होंगे उस पर से पिनिएटली कंपाउंड लीफ में 5 टाइप होते हैं, और मिडरिप जितने बार डिवाइड होंगी उस पर से पामेटली कंपाउंड लीव्स में 7 टाइप्स होते हैं, यानी 5 + 7 टाइप्स हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। ये है हमारा पिनिएटली कंपाउंड लीफ के टोटल 5 टाइप्स।
अब यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे हैं यूनिपिनिएट कंपाउंड लीफ। ये जो एक फिगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये शायद आप लोग पहचानते होंगे ये फिगर को, रोज के लीव्स है। ये रोज के फ्लावर्स के नीचे जो आते हैं वो लीव्स है ये। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मिडरीप है सेंटर की, ये मिडरीप बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुई है, मिडरीप जैसी क्या वैसी है यहाँ पर। और ये मिडरीप के ऊपर एक वक्त में एक ही लीफलेट का पेयर फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसे यूनिपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाएगा। एक वक्त में एक ही पेयर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे यूनिपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है रोज। सेकंड वन जो है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वक्त में दो पेयर्स हर जगह पर फॉर्म हो रही है। छोटे छोटे पेयर्स जो है, ये दो पेयर्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है, यानी लेमिना जो है वो कई बार डिवाइड हो रहा है, मगर हर बार दो के ही पेयर में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे बाइपिनिएट कंपाउंड लीव्स। इसे फुल फॉर्म में अगर कहना है तो कैसा कहेंगे, यूनिपिनिएट कंपाउंड लीव्स, बाइपिनिएट कंपाउंड लीव्स। यूनिपिनिएट का एग्जांपल मैंने बताया रोज, बाइपिनिएट का एग्जांपल है गोल्ड मोहर, जिसे हम हिंदी या मराठी में गुल मोहर कहते हैं। ये प्लांट बहुत कॉमन है नवापुर में। तीसरे टाइप में हम लोग देख रहे हैं ट्राइपिनिएट कंपाउंड लीव्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 ऐसा सक्सेसिवली जहां पर डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे 3 के पेयर में यहाँ पर लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइपिनिएट कंपाउंड लीव्स। और इसका एग्जाम्पल है मोरिंगा। मोरिंगा को मराठी में शेवगा कहा जाता है और गुजराती में सेप्टा कहा जाता है। और लास्ट वाला जो है, जिसे डी कंपाउंड कहा जाता है। अब पहले टाइप में हमने देखा एक सिंगल पेयर की, यहाँ पर 2 पेयर है, यहाँ पर 3 पेयर है। अब यहाँ पर 3 से ज्यादा पेयर दिखाई देते हैं, इसलिए इसे डी कंपाउंड कहा जाता है। डी कंपाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, 3 से ज्यादा पेयर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डी कंपाउंड लीव्स। अब ये डी कंपाउंड लीव्स का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे कोरिएंडर कहा जाता है। कोरिएंडर आप लोगों ने देखा होगा, मराठी में इसे हम कोथंबीर कहते हैं, हिंदी में हरा धनिया कहा जाता है। और ऑनलाइन लेक्चर चालू छे, હું પછી फोन करा। हरा धनिया कहा जाता है या कोथंबीर कहा जाता है। ये डी कंपाउंड का एग्जाम्पल है। शायद कुछ लोगों ने कोथंबीर के पत्तों को बहुत गौर से देखा होगा, तो उनके समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने आज तक सिर्फ कोथंबीर खाई है, देखा नहीं है बारीकी से, तो आप घर पर जाकर या मम्मी से पूछकर कोथंबीर मांग के जरूर देखना कि उसमें लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोगों को डी कंपाउंड तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये सभी टाइप्स जो देखे, ये सभी टाइप में एक कॉमन चीज है कि बीच में की मिडरिप है वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुई है, वो जैसी क्या वैसी है। जहां पर मिडरिप डिवाइड नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं पिनिएटली कंपाउंड लीफ। अब हम ऐसे टाइप देखेंगे कि जिसमें लेमिना भी डिवाइड होता है और मिडरिप भी डिवाइड होता है, इसे हम लोग कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। ये जो पामेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, इसमें मिडरिप और लेमिना दोनों डिवाइड होते हैं। हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर में एक मिडरिप है और एक लेमिना है, यानी यहाँ पर मिडरिप में सिर्फ एक ही टाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक मिडरिप है और एक लेमिना है।
तो इसे कहते हैं यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ। यूनि का मतलब होता है सिंगल और फोलिएट का मतलब होता है लैमिना। यहाँ पर मिडरिप के साथ साथ सिंगल लैमिना प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहेंगे यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ। अब सेकंड टाइप आता है बायफोलिएट कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नीचे के साइड में एक सिंगल मिडरिप है, मगर जैसे ही ऊपर डेवलपमेंट हो रही है ये मिडरिप दो हिस्सों में बट चुकी है। यहाँ पर डिवाइडेशन होने की वजह से दो हिस्सों में बट चुकी है, यानी दो लीफलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये मिडरिप डिवाइड होने की वजह से लीफलेट्स भी डिवाइड हुए और दो मिडरिप फॉर्म हुई और दो मिडरिप के इर्द गिर्द दो लीफलेट्स फॉर्म हुए। यहाँ पर दो लीफलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे बायफोलिएट कंपाउंड लीव्स। बाय का मतलब होता है दो और फोलिएट का मतलब अगेन लीफलेट्स। तो दो मिडरिप यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसलिए इसे बायफोलिएट कहा जाएगा। थर्ड टाइप है ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट नेचुरली बाय वन, यूनि में वन था, बाय में दो था, तो ट्राई में तीन है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से ये मिडरिप डिवाइड होती है और तीन लीफलेट्स फॉर्म होते हैं। तीन लीफलेट फॉर्म होने के वजह से इसे ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। अब अगला जो है क्वाड्रिफोलिएट कंपाउंड लीफ है। क्वाड्रा का मतलब होता है चार। ये क्वाड्राफोलिएट यानी चार लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे क्वाड्राफोलिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। और लास्ट वाला जो है मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि चार से ज्यादा लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। अब ये सब के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ जो है वो सिट्रस के प्लांट में मिलता है। सिट्रस यानी नींबू का प्लांट। बहुत सारे लोगों ने नींबू का प्लांट देखा होगा, उसमें इस तरीके के लीफ हमें मिलते हैं जिन्हें यूनिफोलिएट कहा जाता है। बायफोलिएट लीफ जो होता है ये बिगोनिया नाम के प्लांट में मिलता है। ये प्लांट थोड़ा सा नवापुर में इतना कॉमन नहीं है। येलो कलर के डार्क फ्लावर्स इसमें आते हैं, मगर आप गूगल पर अगर डालोगे बिगोनिया फ्लावर्स तो आप लोगों को इस येलो कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स वहां पर दिखाई देंगे। वो प्लांट में ऐसे टाइप के लीफ होते हैं। ट्राइफोलिएट के जो लीफ होते हैं इसे बेल कहा जाता है। बेल के पत्ते शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। पूजा में भी इसका यूज होता है और मेडिसिनल भी इसका यूज बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को शुगर है और 5 बेल के पत्तों का रस अगर सवेरे पिलाया जाता है तो शुगर जल्दी कंट्रोल होती है। अगला वाला है क्वाड्राफोलिएट। क्वाड्राफोलिएट का एग्जांपल है मार्सिलिया। मार्सिलिया मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप कहीं नदी किनारे या कहीं पानी का जहां पर सोर्स है वहां पर अगर घूमने जाते हैं तो पानी के सतह पर 4-4 पत्तियां ऐसी तैरती हुई दिखाई देती है। कई लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो पानी के सरफेस पर तैरती हुई 4 पत्तियां होती है इन्हें मार्सिलिया कहा जाता है और उसमें क्वाड्राफोलिएट ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब अगला है मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीव्स। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ये सिल्क कॉटन का प्लांट आप लोगों ने शायद देखा होगा। जिस वक्त आप एडमिशन लेने के लिए एडमिशन काउंटर पर आए थे कॉलेज में, तो एडमिशन काउंटर के पास में एक बड़ा सा प्लांट है, पेड़ है बड़ा सा। ये बड़े से पेड़ के जो लीव्स है वो ऐसे दिखाई देते हैं और वो प्लांट को सिल्क कॉटन प्लांट कहा जाता है। ये हुआ पामेटली कंपाउंड लीव्स, जो लीव्स के अलग अलग टाइप्स है। हमने सिंपल लीफ देखा, कंपाउंड लीफ देखा। कंपाउंड लीफ में हमने 2 टाइप देखे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीव्स। ये हुए लीफ में के अलग अलग टाइप। लीफ के अलग कैरेक्टर्स जो है वो हम लोग फिर कल स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं। मैं कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे है, तो फ्राइडे और सैटरडे मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। आप लोग मैं पाठक साहब से बात करूंगा। कल पाठक साहब, कल और परसों पाठक साहब आपका लेक्चर लेंगे।
मैं फिर से मंडे के दिन से कंटिन्यू करूंगा. आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days. सो पाठक साहब से मैं बात करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर वैसा मैसेज शाम तक डालूंगा. ओके, थैंक यू. ओके सर. ओके थैंक यू सर. अपना लेक्चर होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं.